Students, today we are going to see your chapter Polynomials from R.D. Sharma, exercise 4.1. Exercise 4.1 R.D. Sharma, chapter 2, which is polynomials. First sum, major first says evaluate each of the following using identity. उसमें जो first है वो है 2x minus 1 upon x whole square. Okay, so this is nothing but a minus b whole square, and that is equals to a square minus 2ab plus b square. So 2x का whole square minus 2 into 2x into 1 upon x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. एक्स एंड एक्स गेट्स कैंसल. ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. That is your answer for sum number first. Then moving forward towards sum number 2, 2x plus y, 2x minus y. So it is nothing but a plus b, a minus b, which is nothing, and a square minus b square. So 2x का whole square minus y का whole square, which is 4x square minus y square. Sum number third, a square b minus b square a and उसका whole square. अब यहाँ से देखो क्या करेंगे हम लोग. ठीक है, पहले तो इसको एक्सपांड ही करेंगे यूजिंग द सेम आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, देन यहां से अब देखो a स्क्वायर b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर b इंटू b स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर a का होल स्क्वायर. देन व्हाट, a रेज टू द पावर 4 b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे भी b क्यूब हो जाएगा. देन b टू द पावर 4 और यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर. देन व्हाट इज कॉमन, तो भाई a स्क्वायर b स्क्वायर जो है वो दोनों में कॉमन है हर एक टर्म में. तो यहाँ से जाएगा a स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा 2ab और ये हो जाएगा b स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर फॉर सम नंबर थर्ड. ओके, इसको ऐसे भी रख सकते हो या यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हो. नॉट टू वरी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो देयर आर 3 sums which we have done. This is major first sum going on. Then major sum first का fourth देख लीजिए स्टूडेंट्स. तो fourth is a minus 0.1, a minus 0.1, a plus 0.1, which is a minus b, a plus b, and that is a square minus b square. So a का square minus 0.1 का square, which is nothing but a square minus 0.01. Okay, so that is your answer to sum number 4. Then sum number 5th देख लीजिए. यहाँ पे भी I have to write Roman letters. Okay, major first. फिफ्थ सम देखेंगे तो इट इज नथिंग बट 1.5x स्क्वायर माइनस 0.3 y स्क्वायर and 1.5x square plus 0.3 y square. अब if you can see again, this is nothing but a minus b, a plus b and a square minus b square. So इसका आंसर आएगा 1.5x square का whole square minus 0.3 y square का whole square. Now 1.5 is nothing but 2.25 x to the power 4 हो जाएगा और ये जो है वो क्या हो जाएगा 0.3 y square, तो 0.9 y to the power 4. So that is your sum number 5th. Okay, sorry 0.09 आएगा. ठीक है, then that is your sum. Major sum number 1 gets over. Now major sum over. Major sum 2, उसमें भी ऐसा ही लिखा है evaluate each of the following using identities. उसमें जो first है वो कुछ ऐसा है 399 square. Now 399 square can be written as 400 minus 1 का whole square, and that is nothing but a minus b whole square, which is equals to a square minus 2ab plus b square. So
400 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 400 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 400 का स्क्वायर 4 का 16 और ये 0000 माइनस 800 प्लस 1। सो योर फाइनल आंसर विल बी 159201। ठीक है, तो दैट इज योर सम नंबर सेकंड का फर्स्ट। देन सेकंड का सेकंड देखिए 0.98 का होल स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 minus 0.2 square, and again using identity a minus b whole square, that is a square minus 2ab plus b square. So 1 का square minus 2 into 1 into 0.2 plus 0.2 का square। 1 minus 2 into 0.2 4 and 0.04, so 1 minus 0.4 will be 0.6. Okay, so 0.6 plus 0.04 is nothing but you can also write it as 46.64. Okay, sorry 0.964 आएगा, 0.9604, sorry 0.9604। ठीक है, देन सम नंबर थर्ड देखिए 991 into 1009। सो दिस कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखना बच्चों, 1000 minus 9 and 1000 plus 9। okay, and this is nothing but a minus b, a plus b, which is nothing but a square minus b square। 1000 का square minus 9 का square, that is 1000 और ये और 0, that will be nothing but your 10 lakh minus 81। तो 10 lakh minus 81 करोगे तो it will be 9 lakhs 99,019। So this is your answer to sum number third. Then sorry, not 919. Then sum number fourth. Fourth is 117 into 183. 117 into 83. So this can be written as 100 plus 17 and 100 minus 17. Again a minus b, sorry a plus b, a minus b, that is nothing but a square minus b square. So 100 का square minus 17 का square, which is nothing but 100 square is 10,000 minus 17 का square is 289. 10,000 minus 289 is nothing but 9711. So this is your major sum number 1 and major sum number 2 students. Major sum number 3, which is simplify the following. Simplify each of the following. उसका जो first है वो कुछ इस तरह से है, 175 into 175 plus 2 into 175 into 25 plus 25 into 25। अगर आप लोग इसको ध्यान से इवेल्युएट करने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा 175 का होल स्क्वायर प्लस 2 into 175 into 25 plus 25 का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोगों को आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी। आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट, सो a प्लस b होल स्क्वायर एंड दैट इज नथिंग बट 175 प्लस 25 होल स्क्वायर विच इज 200 एंड 200 का स्क्वायर इज 40,000। Okay, so that is your answer number 1. Then moving forward to sum number 2, उसी में देखिए 322 into 322 minus 2 into 322 into 22 plus 22 into 22. Now this can be written as how? How can we write this? 322 whole square minus 2 into 322 into 22 plus 22 का whole square. Now this is nothing but a square minus 2ab plus b square
which can be written as a minus b whole square. And then what is a minus b whole square? So 322 minus 22 whole square, so that is 300 ka square, and that is nothing but 90,000. Okay. So that was your sum number 2. Then moving forward towards sum number 3, देख लीजिए 0.76 into 0.76 plus 2 into 0.76 into 0.24 plus 0.24 into 0.24. Okay, सेम टाइप है, यहाँ पे देख लीजिए तो 0.76 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.76 इंटू 0.24 प्लस 0.24 होल स्क्वायर. नाउ दिस कैन बी रिटन एज, देखिए 0.76 प्लस 0.24 का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी. आप लोगों को ये आइडेंटिटी वापस लिखनी पड़ेगी. हाँ, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपको लिखना पड़ेगा. 1 होता है एंड दैट इज 1 का स्क्वायर, आंसर इज 1. ठीक है. Then moving forward towards the last sum of major sum number 3, fourth, which says that 7.83 into 7.83 minus 1.17 into 1.17 whole upon it is given as 6.66. Okay, now this can be written as, ध्यान से देखना बच्चों, 7.83 का स्क्वायर माइनस 1.17 का स्क्वायर अपॉन 6.66. ओके, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ऊपर, तो a माइनस b a प्लस b. ओके, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b होल अपॉन 6.66. अब देखो 7.83 माइनस 1.17, तो it will be 6, तो 6.66 और ये होगा 0, 8 and 1 9 and 0, 7 8. So 8 upon 6.66. This and this gets cancelled, so answer is 8. Okay. Sorry, it will be 9 because 7 plus 1 8 and 1 9. So answer is 9. So that was your major sum number 3, जिसमें सिंप्लीफाई करके आप लोगों ने ये सारे आंसर्स मिले हैं. ओके. मूविंग टूवर्ड्स फोर्थ सम विच इज जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट. आप लोग याद रखेंगे कि ये कैसे टाइप के सम्स है और किस तरह से सॉल्व करना है. तो सम नंबर 4 सेज दैट इफ x plus 1 upon x is equals to 11, then find the value of x square plus 1 upon x square. अब ऐसे टाइप के सम करने के लिए हमेशा we have to use identity. First of all, x plus 1 upon x whole square की identity use करेंगे तो we can get x square plus 1 upon x square. कैसे? तो x square plus 2 into x into 1 upon x plus 1 upon x square. ठीक है? a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square. Now x plus 1 upon x की वैल्यू पता है 11 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा तो 2 plus 1 upon x स्क्वायर. 11 का स्क्वायर है 121, x स्क्वायर plus 1 upon x स्क्वायर को साथ में लिखेंगे और 2 को यहाँ पे साइड कर देंगे. ये जब 2 यहाँ पे आएगा तो माइनस, तो 121 minus 2 x square plus 1 upon x square, and therefore x square plus 1 upon x square is nothing but 119. So that's your answer for sum number 4. Always remember, ऐसे बहुत सारे टाइप के सम्स आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अगर क्यूब होता तो क्यूब रूट की फॉर्मूला यूज करते, मतलब क्यूब की फॉर्मूला यूज करते. स्क्वायर है तो स्क्वायर का दिया है. जैसे जैसे सम्स बढ़ेंगे आप लोगों को पता चलता जाएगा कि किस तरह से सम्स आते जाएंगे. Now moving forward towards sum number 5, students ध्यान से देखना. हाँ, sum number 5 is also same like this. यहाँ पे देखो ऐसा दिया है x minus 1 upon x is equals to 1, बराबर है, और आपको फाइंड करना है x square plus 1 upon x square. अब आप लोगों को दिमाग से थिंक करना है कि अगर x minus 1 upon x is given, फिर भी मुझे x square plus 1 upon x square कब मिलेगा? तब मिलेगा जब मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा. तो x minus 1 upon x whole square, that will be x square minus 2 into x 1 upon x plus 1 upon x square. ये देखो ये हो गया 1 का स्क्वायर क्योंकि ये वैल्यू गिवन है.
एक्स स्क्वायर, एक्स एंड एक्स गेट्स कैंसिल, -2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ये भाई साहब यहाँ पे आएंगे तो +2 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रह जाएंगे। सो 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज वे टू सिंपल सम्स, बराबर है। सो आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 3, यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 119। Now if you can see sixth sum, this is genuinely important. अब वो कैसे genuinely important है वो देखिए। सिक्स्थ सम ऐसा दिया है, x plus 1 upon x is equals to √5. Now what you have to find is that you have to find two things. X square plus 1 upon x square is equals to how much, and x4 plus 1 upon x4 is equals to how much. अब क्या करेंगे, आपके पास x plus 1 upon x है तो यहाँ से ये जैसे फाइंड किया वैसे ही x square plus 1 upon x square फाइंड करोगे, और इसका क्या करोगे, ये जो वैल्यू आएगी उसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे। अब देखो पहले x स्क्वायर, पहले हम लोग इसका होल स्क्वायर करेंगे, x plus 1 upon x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 into x into 1 upon x प्लस 1 upon x स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है अपनी, ये है √5, तो √5 का स्क्वायर is equals to x and x cancel, x square plus 2 plus 1 upon x square। √5 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 5, x square plus 1 upon x square को साथ में रख देते हैं और प्लस 2 यहाँ पे आ गया, तो x square plus 1 upon x square की वैल्यू हो जाएगी 5 minus 2, that will be 3। Now what about x4 plus 1 upon x4? So what I will do, इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा, तो x square plus 1 upon x square whole to the power 2, okay, and then उसका मैं आइडेंटिटी लिखूंगा, तो x square का स्क्वायर प्लस 2 into x square into 1 upon x square प्लस 1 upon x square का स्क्वायर बराबर है a square plus 2ab plus b square। अब ये देखो x square कैंसिल, ये है 3 का स्क्वायर which is x to the power 4 plus 2 plus 1 upon x to the power 4 बराबर 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से ये भाई साहब आएंगे तो -2 x4 plus 1 upon x4 and which is 9 minus 2 is equals to 7। so आप लोगों को दो वैल्यू मिल गई, एक है x4 plus 1 upon x4 which is equals to 7 and x square plus 1 upon x square which is equals to 3। now ये टाइप के बहुत सारे सम्स आप लोगों को प्रैक्टिस में मिलेंगे, अभी के लिए आप लोगों को मेथड याद हो जानी चाहिए। ओके बे स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सेट्स ऑफ सम्स। अब नेक्स्ट सेट्स ऑफ सम्स जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें ऐसा दिया है कि इफ 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 181, दिस इज गिवन टू अस, एंड xy की वैल्यू गिवन है -6, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5। ठीक है, अब 3x प्लस 5 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना। 3x का स्क्वायर है 9x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है 25y स्क्वायर और xy भी गिवन है, तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें ये तीनों चीज आ जाए, तो दैट इज नथिंग बट कैन आई यूज 3x plus 5y whole square, right? If I use this then it will be 3x square plus 2 into 3x into 5y plus 9y का स्क्वायर, ओके, sorry 5y का स्क्वायर। So this can be written as 9x square plus 2 3s are 6 5s are 6 5s are 30xy plus 5 का स्क्वायर 25y square। Now what I am doing is simply arranging the terms। 9x square plus 25y square को एक साथ लिख रहा हूँ और 30xy को ऐसे लिख रहा हूँ। 9x square plus 25y square क्या है 181 plus 30 into xy क्या है, xy is -6, so 181 plus 36 is 180, so it is 1, और ये आया 3x plus 5y का whole square, तो what will be when we take out the root, so it will be 3x plus 5y which is plus or minus 1, either उसकी वैल्यू 1 आएगी या तो -1 आती है। Moving forward towards your sum number 8, which says that if 2x plus 3y is equals to 8
and xy is equals to 2, then find the value of 4x square plus 9y square. Now 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर कब करेंगे? जब इसका हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तब। सो देखो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x 3y और 3y का होल स्क्वायर बराबर है। नाउ 2x प्लस 3y की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 और xy साथ में रखेंगे और 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर। अब देखो 8 का स्क्वायर 64, 4x स्क्वायर और 9y स्क्वायर फाइंड करना है तो एक साथ रख देंगे और 12 इंटू xy की वैल्यू है 2, ठीक है। तो 64 12 2 जा 24 होगा बराबर, लेकिन ये डायरेक्ट मैं करूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो प्लस 24 यहाँ से ऐसा किया तो 64 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 40। आंसर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40. So that is your sum number 7th and 8th. Altogether there are 14 sums. Okay students? Moving forward towards sum number 9. 9th sum says that if 3x minus 7y is equals to 10 and xy is equals to minus 1, find the value of 9x square plus 49y square. Okay, now if you square this you can get this value. So 3x minus 7y whole square is equals to 3x का square minus 2 into 3x into 7y plus 7y का होल स्क्वायर प्लस 7y का होल स्क्वायर। ओके, सो 3x माइनस 7y पता है 10 तो 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 6 7 जा 42xy और ये हो जाएगा 49y स्क्वायर। अरे ये देखो ये है 10 का स्क्वायर 100, 9x स्क्वायर और 49y स्क्वायर को साथ में रखेंगे और 42 और xy की जगह रखूंगा -1। सो 100 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 42, ये जब यहाँ पे जाएगा तो 100 माइनस 42 will be nothing but 58 and 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी 100 माइनस 42 which is 48। सम नंबर 10th, उसमें वापस दो सम है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऐसा दिया है, जिसमें फर्स्ट है 1/2a minus 3b and 3b plus 1/2a और उसके बाद लिखा है 1/4a square plus 9b square। अब देखो दिस इज वेरी सिंपल। हाँ, ये है पहला ब्रैकेट, देखो मैं इसको थोड़ा रीअरेंजिंग कर रहा हूँ 1/2a minus 3b, यहाँ पे 1/2a plus 3b ऐसा लिख रहा हूँ और इसको एज इट इज जैसा है वैसे ही रहने देता हूँ। अब ये देखो a minus b और a plus b है बराबर है, तो यूजिंग फॉर्मूला या आइडेंटिटी a minus b is equal a plus b which is equals to a square minus b square बराबर है। अब a square minus b square है तो यहाँ पे 1/2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट हो जाएगा इसका, और ये तो है इस साइड पे 1/4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 1/4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब ये देखो अगेन a माइनस b a प्लस b, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा ऐसा, तो ये हो गया 1/16 a टू द पावर 4 माइनस 9 का स्क्वायर 81 और b टू द पावर 4। सो दिस इज सिंपल प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर 10th का फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स 10th का सेकंड सम। सो 10th का सेकंड सम इज अगेन वेरी सिंपल, ये देखिए ध्यान से m plus n/7 whole cube into m minus n/7, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास थोड़ी जगह कम होगी तो I will erase it and we will do it again। तो पहले आप लोग अच्छे से ये देख लो, इसलिए टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना,
इसको है ना मैं थोड़े दो हिस्सों में सेपरेट करूंगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ n+7 m+n/7 m+n/7 एंड m-n/7। ठीक है, तो ये दोनों का अगर मैं साथ में लिखूंगा तो ये कुछ हो जाएगा m+n/7 होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया a+b विच इज a² माइनस b स्क्वायर। बराबर, दैट्स द एंड ऑफ इट। दिस इज योर आंसर फॉर सम नंबर 10th का सेकंड। प्रोसीडिंग फर्दर, अब आपके लिए आएंगे लेवल 2 के सम्स। तो लेवल 2 में देखिएगा उसमें जो 11th सम है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब लेवल 2 का 11th देखो, x² + 1/x² गिवन इज 66 और फाइंड करना है x - 1/x की वैल्यू। दिस इज वेरी सिंपल। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो आने ही वाला है, बराबर है। सो व्हाट आई विल डू, x - 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² + 2 -2 * x * 1/x + 1/x², बराबर है। ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा 1/x होल स्क्वायर। अब x² + 1/x² को मैं साथ में लिख देता हूँ -2 इंटू ये देखो x इंटू 1/x, x and x cancel, x² + 1/x² 66 -2 which is equals to 64 x - 1/x whole square, and when I taking this root out, this will be √64, or you can also write it as plus or minus 8, क्योंकि इसमें दोनों वैल्यू पॉसिबल है। माइनस करोगे तो भी +64 आएगा और प्लस करोगे तो भी 64 ही आंसर आता है। सो दैट इज योर सम नंबर 11। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर सम नंबर 12, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग एंड इजी। 12th देखिए, x² + 1/x² is given as 729 and you need to find the value of x plus 1/x. ठीक है, now again I can square this out, x plus 1/x whole square is equals to x² plus 2 into x into 1/x plus 1/x². Okay, so this is very simple. Okay, यहाँ पे 79 दिया है, not 79, तो 79, तो x² यहाँ पे मैं ऐसे साथ में लिख देता हूँ 1/x² और ये x कैंसिल तो +2 हो गया। यहाँ पे ये है 79 + 2 एंड दिस इज 81 विच इज x + 1/x होल स्क्वायर। जब मैं रूट निकालता हूँ तो x + 1/x की वैल्यू आएगी प्लस और -9। -9 का होल स्क्वायर करोगे तो भी 81 आएगा, +9 का स्क्वायर करोगे तो भी 81 ही आएगा। चलो, मूविंग फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स सम नंबर 13 students, which is also very important and easy as well. Moving forward towards sum number 13, easy है। Simplify each of the following products. Simplify करना है, अलग अलग दिया है 13 के, देखो x/2 minus 2/5 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2/5 minus x/2 और फिर बाजू में ऐसा लिखा है -x² plus 2x। अब ध्यान से देखना, अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो मैं इसमें से माइनस की साइन कॉमन निकाल दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही माइनस की साइन कॉमन निकली तो यहाँ पे बड़ा माइनस आएगा, ये हो जाएगा x/2 और ये हो गया 2/5। और जैसे ही मैं माइनस की साइन कॉमन निकालता हूँ तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, बराबर है, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, एंड दिस इज एज इट इज x² plus 2x। अब ये माइनस को मैं ऐसे रखूंगा, ये माइनस होगा और ये हो गया x/2 minus 2/5 होल स्क्वायर, बराबर है। और यहाँ से ये तो ऐसे ही है -x² plus 2x। अब देखना, ये है माइनस a minus b होल स्क्वायर, तो a² -2 into a into b into b होल स्क्वायर माइनस x² plus 2x। ठीक है, अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, -x²/4 minus 2x/5 होगा ये, बराबर है, और ये होगा 4/25।
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अब ये ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 बराबर है प्लस 2x बाई 5 माइनस 4 बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को साथ में लूंगा और 2x वाले टर्म को साथ में लूंगा। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है एंड देन 2x बाई 5 प्लस 2x माइनस 4 बाई 25। ये जैसा है वैसे का वैसा ही मैं रखूंगा। अब देखिए, ये एक टर्म है जिसका एलसीएम देखो, माइनस 4 आएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एज इट इज इसको रखेंगे प्लस यहाँ से देखो पाई एलसीएम है क्योंकि ये दो एक्स वाले टर्म है तो 2x प्लस 10x माइनस 4 बाई 25। सो द आंसर विल बी माइनस 5x स्क्वायर बाई 4 प्लस 12x बाई 5 minus 4 by 25. After simplifying, you will get this as your answer, which is minus 5x square plus 12x by 5 minus 4 upon 25. Okay, moving forward towards sum number 2. यहाँ पे देखिए x square ऐसा दिया है plus x minus 2 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ऐसा रखूंगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन एक्स माइनस, ठीक है। अब ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी है बराबर है, सो ए स्क्वायर बराबर सॉरी माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए टू द पावर 4 होगा ये और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सो आंसर इज x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। सो दिस इज योर आंसर टू सम नंबर 2 of major sum number 13th. Moving forward towards sum number 3 which is of the same type, देखना ध्यान से, x square minus x cube माइनस 3x स्क्वायर माइनस x और दूसरे ब्रैकेट में ऐसा है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब देखो कर क्या रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, यहाँ से x कॉमन निकाला तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 हो गया और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर है। अब अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब मैं ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x को एक ब्रैकेट में रख देता हूँ माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x को अनदर वन ब्रैकेट और ये a माइनस बी a प्लस बी। सो अब देखो x तो है ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है x। अब यहाँ से देखो x टू द पावर 4 बराबर है, देन यहाँ से माइनस 3 टू 6x क्यूब बराबर है प्लस 9x स्क्वायर माइनस 1। अब मैं x को अंदर जाने देता हूँ तो आंसर विल बी x इज टू 5 माइनस 6x इज टू 4 प्लस 9x क्यूब माइनस x। सो दिस इज योर आंसर टू सम नंबर 3 of major sum number 13. Now your only two sums remain, students. Sum number 4th of major sum number 13, 2x raised to 4 minus 4x square plus 1, 2x raised to 4 minus 4x square minus 1. Again we will do bracket method, 2x4 minus 4x square एक bracket में plus 1, 2x4 minus 4x square minus 1, ठीक है। a plus b a minus b which is nothing but a square, इसका square होगा हाँ माइनस बी स्क्वायर, खत्म, ठीक है। अब a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी बराबर प्लस बी का स्क्वायर ये माइनस 1। चलो 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर होगा 4 और x रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा, देन 2 टू द 4 4 जा 16 आएगा, x 4 और 2 मतलब 6 हो जाएगा।
और ये होगा 4 का स्क्वायर 16 x टू द पावर 4 और ये है -1. सो दिस इज योर सम नंबर 13. Okay, 4x raised to 8 minus 16x raised to 6 plus 16x raised to 4 minus 1. This is your final answer of sum number 13th. Sum number 14, which is really very important. आपको करना क्या है? You are given the proof that a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is always non-negative for values of a, b and c. Means you have to prove that it should be always greater than or equals to 0. Now is equals to 0 रख के देखते हैं पहले. इज इक्वल्स टू 0 या ग्रेटर देन 0, तो वो क्या होना चाहिए? अब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ द साइड्स. मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स. तो अब देखो a 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca is equals to 2 into 0 which is equals to 0. अब देखो मैं ये क्या कर रहा हूँ, a स्क्वायर 2a स्क्वायर है ना, उसको मैं ऐसे लिखूंगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca which is equals to 0. बराबर है? That means a स्क्वायर, अब देखो रीअरेंजिंग द टर्म्स कर रहा हूँ, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एक साथ लिखा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2bc और c स्क्वायर, 2bc और c स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस 2ca और a स्क्वायर साथ में लिखूंगा. बराबर है? दैट मीन्स ये हो गया a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस ये हो गया c माइनस a होल स्क्वायर which is equals to 0. That means either a minus b is equals to 0, b minus c is equals to 0 and c minus a is equals to 0. या स्क्वायर. अब देखो अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, सेम में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. चाहे यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आए, बराबर, या पॉजिटिव नंबर्स आए, इसका जो स्क्वायर होगा वो ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा आप लोगों का? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ही होगा. दैट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर is always non-negative because square of all negative numbers is पॉजिटिव. जैसे -2 है तो -2 का स्क्वायर होगा 4, -3 है तो -3 का स्क्वायर होगा 9, -6 है तो उसका स्क्वायर होगा 36. लेकिन सब कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे. So that's the end of our exercise 4.1 from R.D. Sharma. Thank you very much students.